بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل احترام امیدوار PP24 ڈاکٹر قاسم محمود چودھری صاحب، جناب حبیب رضا بٹ صاحب، جناب ملک سعود صاحب، پروفیسر ساجد بخاری صاحب، جناب فیاض بھائی اور دیگر شرکاء، یہاں بیٹھے ہوئے رانا اسلم صاحب، محمود صاحب، خضر بھائی، سب کا اگر میں نام جمیل کیانی صاحب تو لوں تو مشکل ہو جاتی ہے، کبھی کبھی نام کے اندر غلطی ہو جاتی ہے، ساجد کیانی صاحب، بابو اشفاق صاحب، میری گزارش ہے کہ اگر وہ آج میری سیٹ پہ آ جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ میری تقریر کے دوران یہاں پہ اگر تو میں اسی طریقے سے گزارش کروں گا کہ رانا اسلم صاحب ادھر آ جائیں 2 منٹ کے لیے، پھر اس کے بعد چلیں مقررین آتے رہیں گے۔ حضرات گرامی، یہاں بہت سی گفتگویں، بہت سے ذکر ہو رہے تھے، تو میں بخاری صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں، ملک صاحب کا بھی اور جمیل کیانی صاحب کا بھی، کہ انہوں نے کچھ ماضی کی یادوں کو تازہ کیا۔ وہ طالب علم کی زمانے کی یادیں ہوں، وہ نوجوانی کی، کیونکہ اب 50 سے اوپر چلا گیا ہوں تو میرا خیال ہے دوسری صف کے اوپر جا چکا ہوں، مگر سوچنے کی ساری باتیں ہیں، یہ ایک اویئرنیس ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ کروڑوں روپے جو اشتہاروں پہ لگاتے ہیں، انہوں نے کبھی ساری زندگی کرونا پیچھے گزرا ہے، کہیں پاکستان کے اوپر مشکل وقت گزرے ہیں، مگر نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کروڑوں روپے جو بینروں کے اوپر اور گاڑیوں پہ لگا دیتے ہیں، کسی ایک گھر میں راشن بھی دینے گئے ہوں۔ یہ آپ سارے لوگ دوست جانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن پاکستان کے اندر کو منصفانہ آزادانہ ہو تو اس کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ کیانی صاحب جی کھڑے ہیں نا کیمرہ اٹھا کے، یہ جو صحافی ہیں ان کے حوالے الیکشن ہونا چاہیے، اور یہ الیکشن لڑائیں، ان کے پاس تمام امیدوار جائیں، اپنی زبان کی، اپنی ذہن کی اور اپنی تمام صلاحیتیں ان کے سامنے پیش کریں، اور یہ ان کو آن ایئر کریں لوگوں کے سامنے۔ 1 روپیہ بھی کسی کے نہ لگے الیکشن کے اوپر، اور لوگ گھروں میں بیٹھ کے یہ سمجھ جائیں کہ یہ امیدوار اہل ہے اور یہ نہیں ہے، اور اس کے اوپر فیصلہ دے کر پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک ایسے لوگ قابض ہوئے حضرت قائد اعظم کو یہاں رخصت کرنے کے بعد کہ جنہوں نے یہی پلان بنایا کہ ہر صورت میں ایسا پلان ہو کہ کوئی شریف آدمی، کوئی ایماندار آدمی، کوئی کاروبار الیکشن کو نہ سمجھنے والا آدمی اس ملک کے اوپر باغ ڈور نہیں سنبھال سکتا، اور اس کے اندر تمام عوام کو جکڑ لیا، تمام برادریوں کو اس کے اندر جکڑ لیا، تمام پاکستانیوں کو جکڑ لیا، مرد و خواتین کے ذہن کے اندر ایک خوف ڈال دیا، تھانہ اور کچہری کلچر کو عام کر دیا۔ یہ سارے کام کیے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی ذات کے اوپر اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، اور میرے اور آپ کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتے تھے۔ یہاں سے بیٹھے ہوئے وہاں تک کسی ایک کے شخص کے بھی یہ درد نہیں ہے، اس کی واضح مثال میں دے چکا ہوں۔ اس کی واضح مثال یہ ہے، اگر وہ ہمدرد ہوتے تو کورونا میں نظر آتے۔ آپ سارے گواہوں کو کورونا میں نظر آیا، MPA میں نے جو امیدوار بنے ہوئے، آپ سارے گواہوں، چولستان کے اندر جو قید سالی ہوئی اس کے اندر کوئی امیدوار قومی اسمبلی کا ہو جو جیتا ہوا یا ہارا ہوا وہاں پہ کوئی نظر آیا؟ کوئی نظر نہیں آیا۔ یہاں پہ الخدمت نظر آتی ہے، اور جماعت اسلامی کے امیدواران جو بہت کم ووٹ لیے ہوتے ہیں وہ سامنے نظر آتے ہیں، باقی نظر ہی کوئی نہیں آتے۔ اسی طریقے سے اگر پوری دنیا کی بات کی جائے، فلسطین کی ان مسلمانوں کی چیخیں دیکھی جائیں، ان ماں اور بہنوں کے زخم دیکھے جائیں، اسپتالوں کی بربادی دیکھی جائے، جہاں عوام کے سٹیٹس نظر آتے ہیں، جہاں مسجدوں کے اندر سے دعاؤں کی بات آتی ہے، مگر کوئی ایک لیڈر جو جیتا ہوا ایوانوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ابھی اس کو نیٹ کے اوپر سرچ کر کے دیکھ لیں، میری بات غلط ہو میں دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں، نہ زرداری بولا نہ نواز شریف بولا اس کے حوالے سے۔ کیوں نہیں بول رہے؟ کہ ان کے آقا کوئی اور ہیں، کوئی ان کی کسی اور جگہ سے ڈکٹیشن ہوتی ہے کہ کون سا بیان دینا اور کون سا بیان نہیں دینا۔ اس لیے امت مسلمہ کے بھی یہ لیڈر نہیں ہے، جہاں پاکستانی قوم کے یہ لیڈر نہیں تھے، جیسے میں نے ثابت کیا کہ کورونا کے اندر یہ نظر نہ آئے، زلزلے کے اندر یہ نظر نہ آئے، کسی اور جگہ پہ بھی نظر نہ آئے، ایسے ہی امت مسلمہ کے بھی یہ لیڈر نہیں ہے۔ ساتھ کشمیر ہے، کشمیر کے اوپر بھی ان کی یہی روش ہے کہ بالکل اس کے اوپر ٹھنڈی سانس لی ہوتی ہے۔
कानों पे जूं तक नहीं रेंगती इनके कि जनाब मुसलमानों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, वहां माँ और बहनों और बेटियों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। ये सारी चीजें हैं, ये चीजें साबित करती हैं कि ये जो उम्मीदवार आते हैं 5 साल बाद नजर जैसे फसली बटेरे होते हैं, ये जो उम्मीदवार नजर आते हैं जैसे मौसमी कीड़े होते हैं, ऐसे निकल के आते हैं और मुझे और आपसे वोट लेकर एक दिन बिरयानी खिलाकर चंद गाड़ियों के झूठे देके और फिर झंडे लगा के खौफ बिला के मिठाइयां तकसीम करके हमसे वो सारी चीजें छीन कर ले जाते हैं जो हमारी जिंदगी की जरूरत है। क्या हमारी जिंदगी की जरूरत है? मैं समझता हूं हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि मेरे बुजुर्ग को, जो मेरे घर के अंदर मेरी मां और बहन बैठी हुई है, मेरी वालदा बैठी हुई है, या फिर मेरा वालिद बैठा हुआ है, कोई भी बूढ़ा शख्स बैठा हुआ है, नाना है या दादा है, उसको वीआईपी किस्म का इलाज इस स्वावा अस्पताल के अंदर, दीना के अंदर और जेलम के अंदर मिलना चाहिए। किसी को मिलता है? नहीं मिलता, क्योंकि उनके वीआईपी इलाज सारे बरतानिया के अंदर, दुबई के अंदर और सऊदी अरब के अंदर उनके इलाज होते हैं। हमें कुछ नहीं मिलता। जरूरत इस बात की है कि मेरी बेटी को ऐसी जगह तालीम मिले कि उसको हर यूनिवर्सिटी मिले और फ्री में मिले उसको यूनिवर्सिटी की तालीम, मगर वहां साथ तहफ़्फ़ुज़ भी हो कि मेरी बेटी पूरे अमन के साथ, सुकून के साथ, किसी की वहशत का, किसी की दरिंदगी का निशाना ना बन सके। मगर कभी मिला है पाकिस्तान के अंदर? आप सारे मीडिया के लोग मौजूद बैठे हुए, क्योंकि मोबाइल आपका मीडिया और आपके पास मौजूद है। अभी बावलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई बेटी यहां से भेज सकता है वहां, या अभी भी इजाज शाह दंदनाता फिर रहा है? आप मुझे बताएं ना, इनको क्यों नहीं लगाम देते? 16 जमातें पिछले मर्तबा ये इक़्तिदार के अंदर मौजूद थी, किसी एक ने भी इजाज शाह को पकड़ा, जेल के अंदर डाला, जिसकी वीडियो रिलीज हो चुकी है। मेरे और आपका सबसे बड़ा मसला इस नौजवान को है जो होटलों पे बैठा हुआ है, इस नौजवान का है जिसके लिए कोई कॉलेज ऐसा नहीं है जिसको बेहतरीन कॉलेज मिल सके। तो किसने हल किया? किसी ने ना हल किया। 75 साल गुजर गए, इस नौजवान का मसला ना हल हुआ। अभी दोस्त बात कर रहे थे पानी का, सबसे अहम मसला है पानी का। इस सुहावा शहर बूंद बूंद से पानी इसके तरसता है। सुई गैस को छोड़ दें, देख लें कितनी मरतबा यहां पे इफ्तिताह हुआ, सिर्फ पाइप रखे गए, सिलेंडरों के साथ इफ्तिताह किया गया और सुई गैस इस शहर के अंदर ना आई। क्यों ना आई? अगले इलेक्शन की बात करते हैं। अभी चंद दिन पहले एक जलसा हो रहा था, उसमें जनाब एक उम्मीदवार कह रहे थे कि मैं 8 तारीख इलेक्शन जीतूंगा, 9 तारीख दरखास्त दायर करूंगा और 10 तारीख आपका पानी शुरू हो जाएगा और सुई गैस। मैंने कहा पीछे स्टेज पे नजर दौड़ाओ, 40 साल से इक़्तिदार में रहने वाले तुम्हारे स्टेज पे बैठे हुए हैं, तो पहले उनसे पूछो ना, 40 साल तुमने क्यों ना इस शहर को पानी दिया? 40 साल हो गए, तुमने क्यों ना इनको गैस दी? तुम एक दिन के अंदर आके पानी और गैस दे दोगे? जो कोट घोरी रोड, जो मेन रोड है, उसका रास्ता तक नहीं जानता, वो कैसे दे लेगा? हज़रात गिरामी, ये सोचने की बातें हैं। आज ये पड़ोस के अंदर दुबई है, वो एक छोटा सा मुल्क है, वो एक तपती सहराओं का मुल्क है जिसके अंदर कोई इतनी बड़ी आमदन वाली चीजें मौजूद नहीं है, मगर वहां पे जाने वाला एक ड्राइवर, वहां पे जाने वाला एक मजदूर, जहां पे जाने वाला दिहाड़ीदार, वो 3 लाख कमाता है और पाकिस्तान भेजता है। हर तरफ देख लें करेंसी की क्या सूरत हाल है। क्या पाकिस्तान के अंदर किसी MBBS डॉक्टर की भी इतनी तनख्वाह मौजूद है जो 1 करोड़ रुपया लगा के बनता है? उसकी भी इतनी तनख्वाह नहीं है। क्या किसी प्रोफेसर की 3 लाख तनख्वाह है जो इतनी मेहनत करके उस सीट के ऊपर आता है? क्या किसी टीचर की इतनी तनख्वाह है कि वो जनाब इतनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाता है? नहीं है, नहीं है। जरूरत इस बात की है और देखना भी हमने यही है। आज की ये मजलिस, आज हम मोहल्ला मोहल्ला, गली गली लोगों को इकट्ठे करके सिर्फ एक ही सबक बता रहे हैं और एक ही दर्स दे रहे हैं, एक ही अवेयरनेस दे रहे हैं। खुदारा पहचानो उन लोगों को, खुदारा पहचानो अपने को, खुदारा पहचानो अपने घर वालों को, खुदारा देखो इन चीजों को कि कौन बेहतर है इस पाकिस्तान के लिए। जो 75 साल से जिन्होंने लूटा है वो बड़े तरीके से फिर वापस आ जाते हैं। बड़ी जबरदस्त बात करने लगा हूं आपके सामने। वही खानदान, इसी जिला जेलम का एक ही खानदान, पहले सबसे पहले वो लालटेन के ऊपर इलेक्शन 2 लड़ता है, फिर कुछ अरसे बाद उनको ख्याल आता है लालटेन दुरुस्त नहीं, तीर के ऊपर 2 इलेक्शन लड़ता है। वालिद साहब चले जाते हैं, बेटा आ जाता है और वो तीर के बाद साइकिल के ऊपर 2 इलेक्शन लड़ते हैं। फिर उनको ख्याल आता है नहीं साइकिल भी ठीक नहीं है, फिर बल्ले पे इलेक्शन लड़ते हैं। फिर अब ख्याल आता है बल्ला भी ठीक नहीं है, तो फिर शेर के निशान के ऊपर आ रहे हैं। एक ही घर है और 5 निशानों के साथ वो इलेक्शन पे आ चुका है। बड़े अफसोस की बात है, कौम को क्यों नहीं समझ लग रही
कि ये लुटेरे हैं, ये अपने घरों को पार रहे हैं, इनके बच्चे 1.5 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं, इनका इलाज वीआईपी है, जीत जाएं तो ये इस्लामाबाद के अंदर जाते हैं, हार जाएं तो स्विट्जरलैंड जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं हमारी तो चलती नहीं है। तो ये वो लोग हैं। कब इनको पहचानोगे? कल कहते थे कि ये इंतहाई गुंडा है, आज उसके पांव में बैठे हुए हैं। कल कहते थे ये चोर है, आज उसके घुटनों के साथ बैठे हुए हैं। ये कैसे लोग बरसर इक़्तिदार आते हैं? क्यों नहीं हमें समझ लगती कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? कैसे एक बाप बर्दाश्त करे कि उसका बेटा इंग्लैंड के अंदर हो? कैसे एक बाप बर्दाश्त करे? उसको नींद कैसे आती है कि उसका बेटा दुबई के अंदर काम कर रहा हो? वो तो रोज सोचता होगा, पता नहीं उसको खाना मिला, सोना मिला या बाकी कोई और चीज मिली, तो वो तो यही देख रहा होता है। क्या बाप दिल नहीं होता? क्या मां का दिल नहीं है कि वो एक जवान बच्चे को पढ़ाती है, लिखाती है या कोई हुनर सिखाती है और उसके बाद वो दुबई के धक्के खाएं, उन अरबियों के आगे चले जाएं या उन गोरों के पास चले जाएं इंग्लैंड के अंदर, जहां पे वो बर्तन भी धोने पड़ते हैं, जहां उनको जूते भी साफ करने पड़ते हैं, जहां उनको अपने कपड़े भी साफ करना पड़ते हैं, जहां उनको खाना भी तैयार करना पड़ता है, और यहां मां के वो पराठे भी वो याद करता है वहां बैठ के, यहां गमी को याद करता है वहां बैठ के, यहां खुशी को याद करता है वहां बैठ के। तो ये सारी चीजें इस पाकिस्तान के अंदर हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? सिर्फ एक ईमानदार ध्यानदार क़यादत आ जाए, इस मुल्क के ऊपर सराजुल हक जैसी क़यादत आ जाए, ऐसी क़यादत आ जाए जो आके बैठ जाए ईमानों के अंदर, जो पाकिस्तान के नौजवान को कहे अपनी मां के साथ वक्त गुजारना है मगर 3 लाख तनख्वाह मिलेगी, हाँ अपने बूढ़े बाप का सहारा बनना है, 3 लाख तनख्वाह मिलेगी। ऐसे इक़्तिदार के अंदर ईमानों के अंदर लोगों को लाने की जरूरत है। और इसलिए भी लाने की जरूरत है कि ये पड़ोस में मेरी बहनों के ऊपर जब कश्मीर में जुल्म होता है तो वो इक़्तिदार में बैठा हुआ सराजुल हक कहे इंडिया तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? कायदे आज़म ने कहा था कि अगर हम पाकिस्तान बनाएंगे, इंडिया के अंदर किसी मुसलमान को तकलीफ हुई तो यहां से हम उसको पूछेंगे कि कैसे तुम तकलीफ दे सकती हो। क्या किसी ने पूछा है कि कश्मीर के अंदर कितना जुल्म हो रहा है? नहीं पूछा। कायदे आज़म ने कहा था ये फलस्तीन के अंदर कि कभी किसी इस नाजायज रियासत को कबूल नहीं करेंगे इसराइल को। तो फिर क्या हुआ उस फलस्तीन के साथ? हम जंग से डरने वाले लोग नहीं, हम मुजाहिदीन से तल्लक रखने वाले हैं। हम कहते हैं आओ फौजों को टकराओ, आपस में सरहदों पे फौजें लड़े, मगर ये कोई जंग नहीं है कि बेटी के ऊपर जख्म डाला जाए, ये कोई जंग नहीं है कि कॉलेजों के ऊपर बमबारी की जाए, ये कोई जंग नहीं है कि अस्पतालों को तबाह किया जाए, ये कोई जंग नहीं है कि बच्चों को जख्मी किया जाए। ये जंगी जराइम है। और यहां के इक़्तिदार के मजे लेने वाले, पूरी दुनिया के मुस्लिमों के इक़्तिदार के मजे लेने वाले किसी एक को जरूरत भी नहीं होती कि उठ के आलमी अदालत का दरवाजा खड़का दे। तो हज़रात ग्रामी, एक जुर्रतमंद, बाकिरदार, ईमानदार की आदत जब इस ऐवान के अंदर होगी तो वो इसराइल को ललकारेगा और कहेगा तुम्हारी जुर्रत कैसी है कि मेरी बेटी के ऊपर तुम जुल्म कर सकते हो? तो लिहाजा जहां अपने बच्चों का सोचना है, अपनी बेटी का सोचना है, उसके तहफ़्फ़ुज़ का, अपने बूढ़े बाप का सोचना है, जहां अपनी पूरी दुनिया के मुसलमानों का सोचना है, तो फिर इसलिए जरूरी है अपनी अनाओं से निकलें, अपनी बरादरियों से निकलें, अपनी इलाकाइयत से निकलें और निकलने के बाद ये सोचें कि 75 सालों से जिन ठगों ने ठग किया है, इस मुल्क को लूटा है, नोचा है इस मुल्क को, तो उनको उनसे जान छुड़ानी है, उनका किला यहां से उखाड़ना है। तो उसकी एक ही तरीका है, डोर टू डोर जाके तराजू की मुहिम करें, एक एक शख्स को उसके कान पकड़ के कहें ये ज़िया बुखारी का वोट नहीं है, ये मेरी बेटी का वोट है, ये ज़िया बुखारी का वोट नहीं है, ये मेरे बेटे का वोट है, ये डॉक्टर कासिम का वोट नहीं है, ये मेरे बुजुर्गों का वोट है, ये डॉक्टर कासिम का वोट नहीं है, ये उस यूनिवर्सिटी के लिए वोट है जो लड़कियों को जरूरत है, ये डॉक्टर कासिम का वोट नहीं है, ये उस बच्चे के रोजगार का वोट है कि यहां पुरसुकून तरीके से रोजगार करे और किसी पुलिस वाले, किसी एसी की, किसी डीसी की जरूरत ना हो। तुम सफाइयां तनो करो नालियां के, तुम शहर के बाकी इंतजामात ना संभालो, तुम सर्विस रोड के ऊपर रश को ना देखो, तुम रोज के एक्सीडेंट को ना देखो, इंतजामी मामलात पड़े रहे, अदालतें बंद हो, मुकदमे ना सुनो और आके छोटे छोटे रेडी बानों को तुम उठाओ और उनको जुर्माना करो। अपनी जेब भरने के लिए 1.5 करोड़ की गाड़ी में वो एसी आता है और आके बैठ जाता है 3000 फ्रूट वाले से, जिसने टोटल 3000 फ्रूट रखा है उस पर जुर्माना करता है। ये तभी खत्म हो सकती है ज्यादतियां कि एक ईमानदार दयानदार क़यादत इस मुल्क के अंदर आए। उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उठना पड़ेगा। ये मेरा और कासिम साहब का मसला नहीं है, ये हमारे बच्चों का मसला है। इसको खुदारा समझें, अगर समझ गए तो इंशाअल्लाह इस मुल्क की तकदीर बदलेगी। और यहां जहां इस मुल्क के अंदर
नबी करीम सल्लल्लाहु की सीरत के मुताबिक हुक्मरानी होगी, खुलफाए राशिदीन जैसी हुक्मरानी होगी, और ऐसी रियासत बनेगी जो कहेगी कि जो ज़कात नहीं देगा तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी, और वो ज़कात जो अमीरों से लेनी है गरीबों को देनी है। क्या खूबसूरत सिस्टम है। और वो टैक्स खत्म करेंगे जो गरीबों से लिया जाता है और अमीर खाते हैं, याशी करते हैं। कानून वो खुलफाए राशिदीन का होना चाहिए जिसके अंदर ये ना हो कि उस कानून के अंदर गरीब मकड़ी के जाले के अंदर फंस जाए और अमीर उसको तोड़ के चला जाए। नहीं नहीं, इंसाफ हो, गैर मुस्लिम सामने हो, एक तरफ मुसलमान हो और पता चले मुसलमान गलत है तो वो हुक्मरान गैर मुस्लिम के हक में फैसला दें। तो ऐसी हुक्मरानी की जरूरत है। ऐसी हुक्मरानी तभी आ सकती है कि जब सारे मिलकर आप निकलेंगे, एक बाजू बन के निकलेंगे, सारे निकलेंगे और कहेंगे नहीं इस मर्तबा तराजू को वोट देना है, इस मर्तबा हमने अपने घर को वोट देना है, अपनी गली को वोट देना है, अपने वालिदैन को वोट देना है। तब इस मुल्क के अंदर तब्दीली आ सकती है और मुस्बत तब्दीली आ सकती है। कोई ऐसी वैसी तब्दीली नहीं, मुस्बत तब्दीली आ सकती है। तो मैं यकीन कर सकता हूं सुहावा वाले इस चीज को समझेंगे और आगे फैलाएंगे और तराजू के लिए मुहिम करेंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठो बैठो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।